سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ اس سے قبل آیت نمبر 11 کے حوالے سے 2 درس ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر خالق کائنات نے 3 امراض کا ذکر کیا۔ اس میں پہلا مرض جو ہے وہ اس انداز میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، جس کا مطلب یہ ہے خالق کائنات یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم کسی اور مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر ہنسو مت اور اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جن پر تم ہنس رہے ہو اس کا مقام بلند ہو، تو اس لیے مذاق اڑانے پر اور کسی مسلمان پر ہنسنے پر خالق کائنات نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں پابندی لگا دی۔ یہ پہلا مرض تھا جس کی وضاحت میں کر چکا۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات نے یہی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب مت ڈالو، یعنی ایک دوسرے کے عیب مت تلاش کرو اور ایک دوسرے پر تانا مت کسو۔ یہ ہو گئے 2 امراض۔ گزشتہ درس کے اندر میں نے یہ واضح کیا تھا، سورہ حجرات کے اندر ٹوٹل 3 امراض کا تذکرہ ہے، 2 بیماریاں اور 2 امراض کے حوالے سے درس قرآن آپ نے سن لیا۔ آج ہم جو انتخاب کر رہے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 11 کے اندر تیسری بیماری جو کینسر سے بھی خطرناک ہے، ہارٹ سے بھی خطرناک ہے، ہیپاٹائٹس سے بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ امراض ہماری جان لیوا ہیں، لیکن قرآن جن امراض کا تذکرہ کر رہا ہے وہ باعث بن سکتے ہیں اگر اللہ ناراض ہو گیا جہنم میں جانے کے۔ تو یہ بڑے کٹھن اور سخت امراض ہیں۔ اب تیسرا مرض جو ہے آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 11 کے اندر، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ کسی کو برے القاب سے بلاؤ۔ یہ تیسرا مرض ہے۔ پہلا مرض آپ سن چکے، دوسرا مرض بھی آپ سن چکے۔ سورہ حجرات میں ٹوٹل آیت نمبر 11 میں 3 امراض، تیسرا مرض ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا اگر ممکن ہو تو ان الفاظوں کو بھی ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں قرآنی آیت یاد ہوتی ہے یا پھر حدیث مبارکہ یاد ہوتی ہے تو اس کی برکت سے ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں برے القاب سے ایک دوسرے کو بلانا اس سے منع کرتا ہے، اس سے تم اجتناب کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایسے الفاظ ہم سامنے والے کو بلانے کے لیے استعمال کریں جس کے اندر اس کی تنقیص ہے، اسے ناگوار گزرے، اس کی تذلیل ہے۔ اگر ایسے الفاظ اگر ہم سامنے والے کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کی بے عزتی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ہتک عزت، یعنی وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کی تحقیر اور تنقیص ہو جاتی ہے۔ خالق کائنات ایسے کلمات ایک دوسرے کے اوپر استعمال کرنے سے منع کر رہا ہے۔ میں اس کی چند صورتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں
पहली सूरत जो हमारे माशरे के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर पाई जाती है कि किसी शख्स को उसी की ज़ात से टारगेट करना, यानी उसके अंदर हमने कोई चीज़ देखी, अब हम उसके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। रब ने तो मना कर दिया ना, वला तनाबज़ु बिल अलकाब, रब तो मना कर रहा है, लेकिन हमने वो अल्फाज इस्तेमाल किए। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी को कह दिया ए फासिक, या किसी को कहता है ए मुनाफिक। अब ज़ाहिर बात है, अगर मैं किसी को कहूँ कि ए मुनाफिक, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसकी तहकीर कर दी, उसे जलील कर दिया। वो 10 लोगों को कहता फिरेगा देखो मुझे इन्होंने जलील कर दिया। इसका मतलब है कि इसकी तहकीर हो रही है, तजलील हो रही है। तो हमें मुसलमान के लिए लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मुनाफिक का। ठीक है, जो मुनाफिक है उनके लिए तो इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप काफिर के लिए काफिर इस्तेमाल करेंगे। कुरान कहता है कुल या अय्युल काफिरून, अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया कि आप काफिरों को इस तरीके से कहें, ए काफिरो। ज़ाहिर बात है जब मुनाफिक है तो आप क्या कहेंगे, ए मुनाफिको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम आपस में एक दूसरे को कहें ए मुनाफिक, इसका मतलब क्या है, हम उसकी तजलील कर रहे हैं, उसकी तहकीर कर रहे हैं। और कुरान ने ऐलान कर दिया वला तनाबज़ु बिल अलकाब, यानी वो अल्फाज इस्तेमाल करने से इज्तनाब करो जिसके ज़रिए सामने वाले की तहकीर और तनकीस और तजलील होती हो। ये एक सूरत बनी। अच्छा, इसे मज़ीद में वाज़ेह करता हूँ। बाद मर्तबा हम सामने वाले को कहते हैं गुस्से में आकर ए कुत्ता। ये मुझे बताएं ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? मतलब ये कि हम उसकी तजलील कर रहे हैं ना, उसकी तनकीस कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, और उसे अच्छा थोड़ी लगेगा जब आप किसी को कहते हैं ए कुत्ता। तो सीधी बात है उसके दिल पर चोट लगती है, जिसको आप क्या कहते हैं, दिल आज़ारी। मतलब कुरान का ये पैगाम इससे रोक रहा है हमें। सूरह उजरात की आयत नंबर 11 हमें इससे रोक रही है कि ऐसे अल्फाज ना निकालो कि जिसके ज़रिए तुम सामने वाले की तहकीर कर बैठो, तजलील कर बैठो। लेकिन एक बात और ज़हन में रखिएगा, अगर हम किसी को ये कहते ए कुत्ता, ए गधा, तो है उसकी तहकीर और तजलील, कुरान ने मना कर दिया। इसका मतलब हम यूज़ नहीं कर सकते, हमने कुरान पर अमल करना है। लेकिन बाद मर्तबा कोई अल्फाज हम निकालते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक उस्ताद है और वो अपने शागिर्द को ऐसे कलिमात इस्तेमाल करता है, अगर वही कलिमात कहीं और इस्तेमाल हो तो आप क्या कहेंगे, तजलील है। लेकिन शागिर्द के लिए अगर वो इस्तेमाल करता है और उसका मकसद तजलील नहीं है बल्कि उसे साफ सुथरा करना है, क्योंकि उस्ताद का काम क्या होता है, उस्ताद का काम ये है जो गर्द लगी है उसे दूर कर दे। ज़ाहिर बात है जो गर्द तालिब इल्म पर लगी हुई होती है उसका काम होता है कि वो उसे दूर करता है। तो अगर उस्ताद अपने शागिर्द को कहता है ऐसे कलिमात अगर किसी और के लिए इस्तेमाल करे तो फिर सामने वाले की दिल को चोट लगती है। लेकिन उस्ताद अपने शागिर्द के लिए अगर इस्तेमाल करे तो फिर इस सूरत में वहाँ ये पहलू निकलता है, वो उसकी तजलील नहीं चाहता बल्कि वो उसे बुलंद करना चाहता है। जैसे मिसाल के तौर पर बाप है, बाप भी तो कभी अपने बेटे को कह देता है ए पागल, ए कुत्ता। अगरचे ये अल्फाज गैर मुनासिब हैं लेकिन कहता तो है ना बाप भी कभी अपने बेटे को कह देता है। तो अब बाप अपने बेटे को कह रहा है, वह मकसद ये नहीं होती कि लोगों के सामने उसकी तजलील हो, वह मकसद ये नहीं होता कि लोगों के सामने उसकी तहकीर हो, बल्कि बाप ने जब गुस्से में कहा तो सिर्फ उसको कहा और बतलाना ये चाह रहा है कि ये जो तेरी हरकत है ना ये अच्छी नहीं है, तो इससे दूर हो जा। तो बाप भी उस्ताद होता है और उस्ताद होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आम बोलचाल में अगर हम ये इस्तेमाल करें ए कुत्ता या फिर ए फासिक, ए मुनाफिक, तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन बाद ऐसे कलिमात हैं जो आप औरों के लिए इस्तेमाल करें तो जायज़ नहीं, लेकिन अपने शागिर्द के लिए इस्तेमाल करें या अपने बेटे के लिए इस्तेमाल करें तो फिर इस्लाम उसकी इजाज़त दे देता है। अच्छा, अब आगे बढ़ें। बाद मर्तबा हम सामने वाले की तजलील करते हैं, तहकीर करते हैं और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और वो इस अंदाज में करते हैं जैसे बाप के हवाले से तनकीद करते हैं, ये तो उसका बेटा है जिसके बाप ने चोरी की है,
یہ اس کا بیٹا ہے جس کا باپ شرابی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس کا باپ جواری ہے. یہ جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسے آر دلا رہے ہیں، آپ اسے شرمندہ کر رہے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا، یہ بات ذہن میں رکھے گا. اسلام منع کرتا ہے. اور اس آیت کریمہ کے تحت ائمہ تفاسیر نے اسے بھی لیا، اور قرآنی پیغام یہی ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے القاب، برے الفاظ سے آپ اپنے سامنے والے کو یاد نہیں کریں گے، اسے پکاریں گے نہیں. میں یہاں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. بڑے جلیل قدر صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، بڑے عظیم صحابی. بعض لوگ اس کو پڑھتے غفاری، غفاری نہیں ہے، یہ ہے غفاری. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری یہ بڑے صوفی ٹائپ کے صحابی تھے. تصوف کا بہت زیادہ غلبہ تھا، اتنا غلبہ تھا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہتے تھے کہ سونا اور چاندی جمع کر ہی نہیں سکتے. جیسے ہماری عورتوں کے پاس ہے نا، پڑے ہوتے ہیں، ہار پڑے ہوتے ہیں، نیکلس پڑے ہوتے ہیں، اچھا کڑے پڑے ہوتے ہیں. ابو ذر غفاری سونے اور چاندی کو جمع کرنے کے قائل ہی نہیں تھے. یہ ان کا مزاج تھا صوفیانہ، اور ایسے مزاج پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. جیسے آپ صوفیہ کی کتابیں پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے بغیر خشوع اور خضوع کے نماز ہوتی نہیں. اب مجھے بتائیں کس کی نماز کے اندر خشوع خضوع ہے؟ آج کل اکثر کی نمازوں میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ چند ہے کہوں گے. لیکن یہ ساری باتیں کیا تصوف کی ہیں، یہ بڑے اعلیٰ معیار کی ہیں. کاش کہ وہ مقام ہمیں مل جائے، لیکن بہرحال ہم اس مقام پر متمکن ہو یہ نظر نہیں آتا. لیکن بہرحال رب جسے چاہے وہ مقام اور وہ سرفرازی عطا فرما دے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ ایک جملہ استعمال کیا جو اسلامی اصول کے مطابق درست نہیں تھا. اللہ کے حبیب نے فوراً پکڑ لیا. وہ لفظ کیا تھا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی کو کہا آپ نے، اے حبشن کے بیٹے. اب مجھے بتائیں لفظ میں کیا ہے؟ حبشن تو حبشی کو کہتے ہیں نا، سیاہ جلد والا، بلیک اسکن والا. یہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے حضرت سیدنا بلال حبشی کے لیے کہا. آپ نے فرمایا اے حبشن کے بیٹے. لیکن یہ جو کہنا تھا نا، اس سے حضرت بلال حبشی کے دل پر چوٹ لگی. اب بارگاہ رسالت میں گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے مجھے کہا، جبکہ حقیقت ہے حبشن کے بیٹے تو تھے نا، اگر مرد ہو تو ہم حبشی کہتے ہیں، اور خاتون ہو تو کیا کہا جائے گا؟ حبشن کہا جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے ماں حبشن ہے. لیکن یہ انداز جو استعمال ہوا تھا یہ تحقیر پر مبنی تھا، تنقیص پر مبنی تھا. حضرت بلال حبشی کو برا لگا. حضرت سیدنا بلال حبشی بارگاہ رسالت میں چلے گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری مجھے کہتے ہیں اے حبشن کے بیٹے. مجھے اچھا نہیں لگا، یہ میری تنقیص ہے، میری تذلیل ہے. اللہ کے حبیب نے فوراً پیغام بھجوایا، ابو ذر غفاری حاضر ہو. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری حاضر ہوئے. آپ نے سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا یہ جو تمہارا طریقہ درست نہیں ہے، اس سے حضرت بلال حبشی کے دل کو چوٹ لگی ہے، اس سے توبہ کرو اور آئندہ ایسے جملے ہرگز 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 استعمال نہ کرنا. اچھا یہاں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. آج کل ذات کا بڑا مسئلہ ہے نا. میں کشمیر گیا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ کشمیر میں بھی دو ذاتیں ہیں، ایک ذات تھوڑی اعلیٰ ہے، ایک ادنا ہے. یہ اعلیٰ والے جو نا ادنا کو قبول نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یعنی اعلیٰ والے ادنا کے لیے ایسے کم الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ کشمیری ہو، وہ پنجابی ہو، وہ پٹھان ہو، وہ ہندوستانی ہو، وہ کچھی ہو، وہ میمن ہو، وہ سندھی ہو، یہ ساری ذاتیں چھوڑیں. رب نے جو رشتہ قائم کیا انما المؤمنون اخوہ، وہ ہے اسلام والا، اسلام والا رشتہ ہے. یہ دوسرا میں نے آپ کو بتایا جو ہمارے معاشرے کے اندر عیب پایا جاتا ہے.
اب آگے مزید ہم بڑھتے ہیں. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا اس کا ماضی خراب تھا. جیسے بعض افراد ہوتے ہیں پہلے کبھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اب الحمدللہ نمازی بن گئے. بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو پہلے جواری تھے لیکن جوے سے توبہ کر لی، اب اس سے دور ہو گئے. بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو شرابی تھے لیکن شراب پینے سے توبہ کر لی. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جو ہے اس پر تنقید کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا یہ وہی نا جو پہلے شرابی تھا، یہ وہی نا جو پہلے جواری تھا. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. یہ بھی وہ نازیبا کلمات ہیں جو آپ ہرگز استعمال نہیں کر سکتے. ورنہ پھر میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو. حضرت بشر حافی کون تھے؟ شرابی تھے پہلے، اور جب توبہ کی اللہ نے وہ مقام دیا حضرت سیدنا بشر حافی کو کہ سینکڑوں اولیاء کے سلطان بن گئے. حضرت فضیل بن عیاض کون تھے؟ ماضی میں ڈاکو تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی اور اللہ کا قرب نزدیک ہو گیا، فقط مقام ولایت پر فائز نہیں ہوئے بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں اولیاء کے سلطان بن گئے. اب بشر حافی پہلے شرابی، بعد میں سلطان الاولیاء. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض پہلے ڈاکو تھے لیکن بعد میں کیا بن گئے؟ سلطان الاولیاء. فقط ولی نہیں بنے بلکہ اولیاء کے بھی سلطان بن گئے، سربراہ بن گئے. تو اس لیے اگر وہ کوئی گناہ کرتا تھا پہلے ماضی میں اور اب آپ کو پتہ ہے توبہ کر چکا، تو پھر ماضی کے گناہ اسے یاد نہ دلائے. یہ تو وہی ہے جو پہلے شراب پیتا تھا، یہ تو وہی ہے جو پہلے جوا کھیلتا. ہاں اس انداز میں کہے کہ پہلے جوا کھیلتا تھا، اللہ نے ہدایت دی، سبحان اللہ، یہ ایک علیحدہ بات ہے. اب تذلیل نہیں ہے، اب تحقیر نہیں ہے، لیکن بطور تذلیل، بطور تنقیص اور بطور تحقیر یہ کہنا یہی نا ابھی ڈیر ہوشیار بن رہا ہے، شرابی تھا ابھی ڈیر ہوشیار بن رہا ہے، جواری تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. یہاں میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حدیث مبارکہ سنیے گا، حدیث ترمذی شریف کی. یہ بڑی اہم حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اور ہمارے اندر جو عادت ہے نا یہ ہمیں کہیں لے ڈوبے نہ، ہمیں برباد نہ کر دے. اللہ کے حبیب نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب، اگر تو اپنے بھائی کو گناہ کی آر دلائے، اسے شرمندہ کرے. اچھا تو وہی نا زانی، تو وہی نا شرابی، تو وہی نا جواری. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو آر دلا رہا ہے نا، لم یمت، نہیں مرے گا، حتی یعملہ، جب تک کہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے. الامان والحفظ. اللہ بچائے. ذرا آپ غور کریں کہ ہم کس طریقے سے سامنے والے کی ہتک کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، اور ایسے کلمات اس پر کستے ہیں جو اسلام ہرگز ہمیں اجازت نہیں دیتا. اسی طریقے سے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، کوئی غیر مسلم تھا، اب غیر مسلم ہندو تھا نا، کرسچن تھا نا، تیرا باپ ہندو تھا نا، تیرا باپ کرسچن تھا نا، تیرا باپ یہودی تھا نا، ان القاب سے بھی منع کیا ہے. اسی مقام پر ائمہ تفاسیر نے ایک بات لکھی، آپ نے نام سنا، ہماری ماں ہے روحانی، حضرت سیدہ صفیہ، ہماری ماں ہے، روحانی ماں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی مقدس زوجہ ہے. ان کو کسی نے کہا اے یہودی کی بیٹی. ان کا والد یہودی تھا اور خود مسلمان صحابیہ اور ازواج مطہرات سے تھی، لیکن والد جو ہے نا یہودی. تو کسی نے کہا اے یہودی کی بیٹی، آپ کے دل پر چوٹ لگی. اب بارگاہ رسالت میں گئی اپنے شوہر کے پاس، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، فلاں جو ہے نا مجھے یہودی کی بیٹی کہہ رہا ہے. میرے مصطفیٰ ناراض ہو گئے، کہا یہ کیوں کہا؟ یہ اچھی بات نہیں ہے.
अच्छी आदत नहीं है। और फिर अपनी वाइफ, अपनी जोजा उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा सफ़िया को आपने इरशाद फरमाया, अब अगर कोई कहे ना तो उसके जवाब में ये कहना, ये मुझे मत कहो कि मैं यहूदी की बेटी हूं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नबी की बीवी हूं। ये चंद सूरतें मैंने आपके सामने पेश की। अगर ये बीमारी हमारे अंदर है, अल्लाह हमें बचाए हमें इन बीमारियों से, और हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहां एक और बात बताना चाह रहा हूं, जिसको मैंने स्क्रीन पर नोट करके लिखा है। लफ्ज का माना तो ज़ाहिरी एतबार से बदनुमा है, अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इस्तेमाल होता है और इससे बुरा नहीं समझा जाता। ऐसे बहुत से अल्फाज हैं, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं। इल्म हदीस के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनका नाम है सुलेमान। स्क्रीन पर आप देखें, ये इल्म हदीस के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। अब जो इल्म हदीस से शगफ रखता है, उन्होंने एक मरतबा नहीं सैकड़ों मरतबा सुन लिया होगा। सुलेमान इनका नाम है, लेकिन मशहूर किससे पता है? इमाम अअमश है। बुखारी उठाए, मुस्लिम उठाए, तिरमिज़ी उठाए, इमाम अअमश। ये लफ्ज़ अअमश का माना क्या है? देखिए मैंने लिखा हुआ है, कमज़ोर नज़र वाला। अब देखें, बज़ाहिर इसका माना तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन इमाम अअमश को जब इमाम अअमश कहते इन्हें बुरा नहीं लगता था, बल्कि मशहूर ही इसी से थे। अगर ऐसी बात है कि बुरा नहीं लगता और लोग उसी से मशहूर हैं तो ठीक है, फिर कोई मुदायका नहीं, कोई हर्ज नहीं। जैसे इमाम अअमश है। मैं एक और मिसाल पेश कर रहा हूं। अरबी ज़बान में ग्रामर का एक हिस्सा है नहव। एक बहुत बड़े नहवी हैं जिन्हें कहा जाता है इमाम अखफश, मशहूर इसी से। बल्कि जब हम मदारिस के अंदर किताबें पढ़ते पढ़ाते हैं तो कहते हैं इमाम अखफश का ये मौक़िफ़ है, हम खुद भी कहते हैं, और किताबों में इसी अंदाज में लिखा जाता है, असातिज़ा पढ़ाते हैं। अब इमाम अखफश, अखफश का माना क्या है? अखफश कहते हैं छोटी आंख वाला। अब ये किसी आम आदमी के सामने आप इस्तेमाल करें तो उसकी तदलील है, उसकी बेइज्जती है। लेकिन इमाम अखफश अखफश ही से मशहूर हैं। अब ये जायज़ है? ये मिसालें थोड़ी मेरे ख्याल से मुश्किल हो गई, मैं आसान मिसाल दे रहा हूं। हज़रत अली को क्या कहा जाता है? अबू तुराब। ये मिसाल बराबर ज़हन में आएगी। हज़रत अली को अबू तुराब कहते हैं, इसीलिए हम नाम भी रखते हैं अबू तुराब। और बहुत बड़े आलिम दीन जिनका विसाल हो गया, अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी अलैहि रहमा, तो तुराब कहते हैं मट्टी को। अबू तुराब का माना क्या है? अबू तुराब का माना मट्टी वाला। अब देखें, लफ्ज़ के माना बज़ाहिर क्या है? थोड़े कमतर हैं, लेकिन अबू तुराब कहा किसने? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा। किसे कहा? अली शेर खुदा को। अगर तज़लील मकसूद होती तो ये जायज़ ना होता। यहाँ तज़लील नहीं, ये क्या है? नबी ने फरमाया। अब हज़रत अली को पूछा जाए आपका नाम क्या है? पहले कहते थे इंग्लिश में आई एम अली, अरबी में अना अली। अच्छा, अब पूछा जाए तो क्या कहते हैं? अना अबू तुराब, आई एम अबू तुराब, मैं अबू तुराब हूं। यहां तज़लील नहीं है, जबकि माना देखा जाए तो माना थोड़ा गिरा हुआ है। लेकिन नबी ने फरमाया, और उसका वाक़या बुखारी के अंदर मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त कैलूला, क्योंकि अरब का मिजाज था दोपहर को सोना, ये सुबह जल्दी उठ जाते थे। अब हमारे तो सुबह ही होती है, आपको पता है, 12 बजे 11 बजे। अरब के लोग तो फजर से पहले उठ जाते, वो दोपहर को आराम करते थे। तो दोपहर को आराम करते इसको कहते कैलूला, कैलूला करते थे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बवक्त कैलूला अपनी लख्ते जिगर खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर तशरीफ़ ले गए। घर पर जब तशरीफ़ ले गए, हज़रत अली घर में नहीं थे, जबकि वो वक्त ऐसा था कैलूला का था। और ऐसे औकात में लोग अपने घर में ही होते, जैसे रात का सोने का वक्त है तो घर में होता है बंदा। तो कैलूला का जो वक्त था वो घर में रहने का था, आराम करने का था।
अल्लाह के हबीब ने हजरत सैयदा फातिमा को पूछा कि कहाँ है अली, ऐन अली, जो अली कहाँ है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूछने पर हजरत सैयदा फातिमा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, थोड़ी तल कलामी हो गई आपस में, मियाँ बीवी में कभी कभार हो जाता है, थोड़ी तल कलामी हुई है। अली नाराज़ हो गए और चले गए। कैलुला का वक्त था, सोना था, लेकिन नाराज़गी हुई, चले गए। अल्लाह के हबीब ने एक शख्स को भेजा, का तलाश करो अली कहाँ है रज़ियल्लाहु अन्हु। जब तलाश किया गया तो आप मस्जिद नबवी में थे, और उस वक्त मस्जिद नबवी का जो फर्श है वो कच्चा था। हज़रत अली उस कच्चे फर्श पर लेट गए, मट्टी आपके जसद पर लगी। मेरे मुस्तफ़ा आए मस्जिद नबवी में, अपने हाथ से हज़रत अली शेर खुदा पर जो गर्द लगी थी ना, उसे साफ किया अपने हाथ से। यह मोहब्बत है। और उस वक्त क्या फरमाया? फरमाया कुम या अबा तुराब, ए अली खड़े हो जाओ ना, अबा तुराब। ये हज़रत अली को पसंद आ गया। अब बज़ाहिर अबू तुराब जो है ना, इसका माना थोड़ा कमतर है, लेकिन याद रखिएगा यहां इसको मोहब्बत का रंग नजर आता है, इसको मोहब्बत का रंग नजर आता है। तो अब अली को पूछा जाए, वैसे अगर किसी को कहे ना क्या मट्टी वाला हो गया है, बाप नहीं कभी बेटे को कहता है इतना मट्टी में खेलता है, मट्टी वाला हो गया। अब देखे वहां हमारा अंदाज क्या होता है, कहते गिरा हुआ है। लेकिन जब अली की बात आती है, अबू तुराब, सुभान अल्लाह। और अगर मैं अपने बेटे का नाम अबू तुराब रखो, सुभान अल्लाह। आप अपने बेटे का नाम अबू तुराब रखें, सुभान अल्लाह, इसलिए कि यहां निस्बत है मौलाए कायनात से, और ये लकब कहां से मिला? बारगाह रिसालत से। मैं एक और आखिरी मिसाल पेश करता हूं इसकी, फिर मजीद आगे बढ़ते हैं आयत की तरफ। वो है अबू हुरैरा। अबू हुरैरा, हिर किसको कहते हैं? कैट, बिल्ली को कहा जाता है। अब अबू हुरैरा का मतलब क्या हुआ? छोटी बिल्ली वाले, बिल्ली वाले, ये माना। अब किसी को कहा जाए ए बिल्ली, जाहिर बात है इसे बुरा लगेगा। अब किसी को कहे ए बिल्ली वाले, तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन ये अबू हुरैरा जो है ना, हजरत अबू हुरैरा के हाथ में बिल्ली थी ना, नबी ने देखा, नबी ने फरमाया या अबू हुरैरा। अब देखें लफ्जी माना, जरा आप देखें तो लफ्जी माना थोड़े कमतर नजर आते हैं, लेकिन यहां यह मुराद नहीं है, बल्कि यहां इश्क और मोहब्बत की छलक नजर आती है। यह बात ध्यान में रखेगा। तो इसका मतलब यह हुआ, ऐसे अल्फाज कहना, ए अंधा, ए कारा, ए कुत्ता, ए फासिक, ए यहूदी के बेटे, ए शराबी के बेटे, इस्लाम इसे कबूल नहीं करता, इससे मना करता है। वला तनाबजु बिल अलकाब। अब आगे कुरान क्या कहता है सुनिएगा, इसी आयत करीमा में, बिसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान। या मैं आपको ऐसी बात बताना चाह रहा हूं, मैं तो जब उस अंदाज में गुम होता हूं तो बस एक रुख आ जाए, रुख आ जाता है। इसका माना देखे क्या है, ईमान के बाद फासिक कहलाना क्या ही बुरा नाम है। मैं इसे समझाना चाह रहा हूं, उसको समझिएगा। वो ये है, अगर गैर आपको डस ले, अल अमानु वल हफीज, अल्लाह हिफाजत करे, कोई गैर है, तो आप क्या कहते हैं? यार ये अपना था ही कहाँ, इसका काम तो डसना ही था, इसका काम तो चोट लगाना ही था। लेकिन मुझे बताएं, जब घर का आदमी डस ले, दोस्त डस ले, भाई डस ले, बहन डस ले, अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार अपनों ने ही हमें चोट दे दी, अपनों ने ही हमें चोट दे दी। मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आयत करीमा की तरफ लाना चाह रहा हूं, इस जुज़ की तरफ, बिसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, इसकी तरफ लाना चाह रहा हूं। तवज्जो रखिएगा, बिला तशबीह, बिला तमसील। ये जो 3 ऐब थे ना सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 में, 3 अमराद। पहला क्या था? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, ताना देना। पहला मजाक उड़ाना, अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? ताना देना, और इसके बाद क्या है? बुरे अलकाब, बुरे लफ्जों से। ये 3 अमराद है। अल्लाह क्या कहता है? ए मुसलमानों, तुम तो बादल ईमान, मुसलमान हो चुके हो,
कोई गैर मुस्लिम कहे तो चल जाएगा, तुम तो हमारे हो गए और फिर भी कहते हो। तवज्जो रखिएगा, जो मैं आपको अपने लफ्जों में रंग बता रहा हूं ना, यही आयत के इस जुज का मतलब है। रब कहते बादल ईमान। हिंदू ने कहा ठीक है, हिंदू ताना करता है ना, करे भाई, वो अपना कहाँ है। ईसाई करता है, करे, वो अपना नहीं है। यहूदी करता है, करे, वो अपना नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है तुमने तो मेरी तौहीद का इकरार कर लिया, मेरे नबी पर ईमान ले आए, जब तुम हमारे हो गए। ये रब कह रहा है, बादल ईमान का मतलब ये है, जब तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया और अब इसके बाद तुम्हारे अंदर ये ऐब जो सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 के अंदर मौजूद है, ये अपनों को जेब नहीं देता। अगियार तो कहते हैं कहते रहे, ये अपनों को जेब नहीं देता। ये अंदाज है ये कुरान का जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए इन अल्फाज को तो जरूर याद कर ले, बिअसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। इसलिए कि जब कोई गुनाह की तरफ कदम बढ़ने लगे तो दिल के अंदर ये बात आएगी, यार ये हिंदू कर ले तो ठीक है, ईसाई कर ले तो ठीक है, यहूदी करे तो ठीक है, मजूसी करे तो ठीक है, यार तूने तो कलमा पढ़ लिया, तू तो अल्लाह के साथ हो गया है, तू रसूल के साथ हो गया है, तुझे जेब नहीं देता, तुझे जुआ खेलना जेब नहीं देता, तुझे जो है ना ताना देना जेब नहीं देता, तुझे मजाक उड़ाना जेब नहीं देता, तुझे किसी मुसलमान को बुरे अलकाब से याद करना जेब नहीं देता। इसलिए कि रब कहता है बादल ईमान, तुम तो हमारे हो गए और फिर भी ये कहते हो, ये नहीं कहो। रब इससे मना करता है। और फिर आगे सुनिएगा, आयत अब मुकम्मल होने को आ रही है। इस आयत के आखिरी अल्फाज रब कहता है वमन लम यतुब, अगर गलती हो गई है, गलती हो गई, माजी में तुमने ये गुनाह कर लिया और ताने भी कसे, मजाक भी उड़ाए, लोगों पर हंसे भी, ये गुनाह हो गया। अब रब क्या कहता है, वमन लम यतुब, तौबा कर ले, तौबा कर ले, बाद आ जा, तौबा कर ले, बाद आ जा। अगर तू बाद नहीं आता और तौबा नहीं करता, रब ने ऐलान कर दिया अल अमान वल हफीज नाऊज़ु बिल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फिर सुन लो, मैंने लिख दिया तुम जालिम हो। रब उसे जालिम कह रहा है। ये 3 अमराज का तस्करा है। और देखें आज क्या होता है, हम कोई कसर नहीं छोड़ते मजाक उड़ाने में, किसी पर हंसने पर, ताना कसने में, ऐब लगाने में, बुरे अलकाबात में, तीनों बीमारियां पाई जा रही है। रब ने कहा बाद आ जाओ, सुन लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम हमारे हो, तुम्हें जेब नहीं देता। और अगर तुम तौबा नहीं करते फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो सुनो फिर मैं ये कह देता हूं तुम जालिम हो गए, तुम जालिम हो। अल अमान वल हफीज। यहां मैं एक आखिरी बात पेश करना चाह रहा हूं। इस मकाम पर एक मुसलमान की आप मजाक नहीं उड़ा सकते। तवज्जो रखिएगा, मेरी आखिरी बात, लम्हे फिक्रिया देना चाह रहा हूं। मुसलमान का मजाक नहीं उड़ा सकते, उसकी हंसी, उस पर हंसना, उस पर ताना करना, उसके ऐब तलाश करना, उसे बुरे लफ्ज़ों से, बुरे अलकाब से याद करना, इससे कुरान ने मना किया सूरह हुजरात आयत नंबर 11 के अंदर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अल अमान वल हफीज, जो इन उमूर से बाज ना आए, कुरान उसे कहता है ये जालिम है। जो अंबिया किराम की बारगाह में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, अल अमान वल हफीज, अल्लाह बचाए। अंबिया किराम की बारगाह में, जो अहले बैत की बारगाह में गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो साहबा किराम की बारगाह में हज़रत सिद्दीक़ अबू बकर पर, हज़रत उमर फारूक पर, एक क्लिप मैंने सुनी तो दिल फट गया। एक रावजी खटमल कहने लगा कि उमर शराबी हैं, माज़अल्लाह, अल अमान वल हफीज, उमर जानी है। मैंने बाकायदा खुद सुनी वो क्लिप, सोशल मीडिया का दौर है। यानी दिल धड़क गया, ये क्या हो गया। एक आम मुसलमान पर ताना कसना, उसका मजाक उड़ाना, उस पर हंसना, इस्लाम कहता है ये जायज़ नहीं। और जो इन बीमारियों में मुब्तला है, कहा कुरान जालिम है। तो जो अंबिया किराम के गुस्ताख है, कितनी गलीज़ ज़बान है। जो अहले बैत के गुस्ताख है, कितनी गलीज़ ज़बान है। जो साहबा किराम के शान में गुस्ताख क्या करते हैं,
सिद्दीक़ अबू बकर, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और फिर औलिया की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। कितनी गंदी ज़बान है, कितनी गंदी ज़बान है। जब आम मुसलमान के बारे में कुरान कहता है जालिम है, तो जो ऐसी गंदी ज़बान रखता है वो तो जालिम से भी जा गुजरा है, वो जालिम से भी जा गुजरा है। ये रब का करम है, हम सुन्नी मुसलमान हैं। और सुन्नी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब के फूल की तरह है, गुलाब के फूल की तरह। उससे बस महक ही आती है, खुशबू ही आती है। हम किसी को गाली नहीं बकते, किसी को बुरा भला नहीं कहते। हाँ, काफिर को काफिर कहा जाएगा, मुनाफिक को मुनाफिक कहा जाएगा, तो मुसलमान को मुसलमान कहा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन अल्लाह के फजल से गंदा नहीं, बल्कि रब के करम से, उसके हबीब के सदके हमारा दामन साफ़ सुथरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला, जैसे आज हमारा दामन साफ़ सुथरा है, तेरी बारगाह में दुआ करते हैं जब तक हमारी दरकन सांस मुकद्दर है, ए मालिक ए परवरदिगार, ए मालिक ए परवरदिगार, तो हमारे दामन को साफ और सुथरा ही रख। आमीन। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो